ناظرین، میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، معروف اسٹرالوجسٹ ہیں، ماہر علم نجوم ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، دو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آئیے آج ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ 2024 کیسا ہوگا پوری دنیا کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، یہ غربت سے تنگ لوگوں کے لیے، مہنگائی سے پریشان لوگوں کے لیے، بیماروں کے لیے۔ تو آج دو صاحب سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں۔ دو صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ نیا سال آ رہا ہے، کیسا ہوگا یہ نیا سال دنیا کے لیے؟ سب سے پہلے 2024 کو ہم مفرد علم العداد سے بات کرتے ہیں، مفرد میں تبدیل کرتے ہیں تو 8 کا عدد نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ 8 کا جو عدد ہے، 8 کا عدد انقلابی تبدیلیوں کا عدد ہے۔ ٹھیک ہے۔ دنیا میں ہونے والی بڑی بڑی انقلابی تبدیلیاں 8 کے عدد کے زیر تحت ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کو سیارہ زحل سینچر، یعنی کہ وہ سیارہ زحل جو روحانیت، انقلاب، ٹھیک ہے، تبدیلیاں اور بڑے بڑے فیصلوں کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 2024 ہے یہ 8 کے عدد میں ہی آئے گا۔ اس میں جن مہینوں میں بڑی تبدیلیاں ہوں گی وہ مہینے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں تیسرا مہینہ، مارچ کا مہینہ، چھٹا مہینہ، 8واں مہینہ اور 12واں مہینہ۔ ان مہینوں میں زلزلے بھی آ سکتے ہیں، ان مہینوں میں آسمانی آفات بھی نازل ہو سکتی ہیں، ان مہینوں میں خطرات بھی ہو سکتے ہیں، اور انہی مہینوں میں انقلاب بھی آ سکتے ہیں۔ پوری دنیا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اور دوسرا یہ موسمیاتی تبدیلیاں، طوفانوں کا آنا، سمندری طوفان اور سیلاب، اس طرح کی چیزیں، سورج گرہن، چاند گرہن، بیماریوں کا اچانک آ جانا، جس طرح کی کرونا کی وبا گزری ہے اس طرح کی کسی وبا کا آ جانا، یہ بھی اس سال جو ہے متوقع ہے معاملات۔ دوسرا کیونکہ 8 کا عدد جو ہے وہ چھوڑتا نہیں کسی کو، یعنی کہ یہ ایسی تبدیلیاں ہیں کہ یہاں پہ جو سوئے ہوئے دشمن ہیں وہ جاگ جاتے ہیں اور جاگے ہوئے بادشاہ جو ہے وہ سو جاتے ہیں۔ ایک ایسی حیران کن تبدیلی 2024 جو ہم دیکھیں گے وہ لوگوں کے لیے ایک عجیب سا منظر پیش کرے گی۔ کیسا منظر؟ اس میں آپ اگر مہنگائی سے تنگ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا خزانہ ملے اور آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگ جائیں، اور شاید یہ جو 2024 کا سال ہے کسی عالمی جنگ کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ ایسے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ پرسکون کرتا ہے بلکہ جنگ و جدل کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ اس میں خاص کر موسمیاتی تبدیلی سے خطوں کی تبدیلیاں، آتش فشاں پہاڑوں کا گرنا اور آگ کا لگنا، اس طرح کے بہت سے معاملات 2024 میں پیش آ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ 2024 میں پاکستانی سیاست میں کیا تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کا بذات خود عدد 8 علم العداد سے، اور 2024 بھی 8، یہ اور امریکہ کا 6 بنتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ میں یہاں پہ اگر دیکھوں تو پاکستان اور امریکہ کا کلیش، اچھا، اور پاکستان کے لیے ٹھیک مگر امریکہ کے لیے خطرناک، امریکہ کے لیے پرابلم۔ ٹھیک ہے۔ چائنا کا 9 نمبر بنتا ہے، اور چائنا جو ہے وہ جیسے جیسے سال یا 2 سال کے بعد ایک بہت بڑی سپر پاور مزید سٹرونگ ہو جائے گا، کیونکہ 2024 کے بعد 2025 کا جو سال ہے وہ چائنا کا سال ہے۔ ٹھیک ہے۔ 2024 کا سال جو ہے وہ ویسے پاکستان کا سال بنتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پاکستان کے جو فیصلے ہیں 2024 کے، وہ عالمی افق پر رونما ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ جو پاکستان میں تبدیلیاں، سیاسی تبدیلیاں ہوں گی، ان کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور انڈیا کا 3 نمبر، انڈیا بھی اپنی بذات خود جو ہے مضبوط پوزیشن میں کھڑا نظر آتا ہے 2024 میں۔ رشیا کا 5 کا عدد بنتا ہے، رشیا جو ہے نیوٹرل پالیسی کے تحت چلے گا۔ یو کے، لندن کا 8 نمبر، بہت سٹرونگ سٹرگل، کامیابی۔ تو یہ چیزیں ایک عالمی منظرنامہ پیش کریں گی۔
फ़लस्तीन की जंग जो है, इसराइल वो ज़रा किसी नए रुख की तरफ, यानी कि जंग थम सकती है, जंग रुक सकती है। अच्छा। और अरब के हालात तब्दील होंगे, अरब में तब्दीलियाँ आएंगी, बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ। अरब का एक नया ब्लॉक बन सकता है और आलमी सतह पर बड़ी हैरानकुन तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। किसी बड़े लीडर का मर जाना, हादसाती मौत का हो जाना, ये भी 2024 में आप ऐसे मंजरकशी भी देखेंगे। मीडिया के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग, आपको ऐसी ऐसी मीडिया की खबरें मिलेंगी, एक ऐसी हैरानकुन खबरें मिलेंगी 2024 के हवाले से कि आप बिलीव ही नहीं करेंगे कि ऐसे भी हो सकता है। मोजज़ात का होना, मोजज़ाती तब्दीलियों का होना, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर नई पेशरफ्त, नई जिद्दतों का होना, नई इजादात, एटॉमिक के नए हथियार और बिजली से मुतल्लिका, इलेक्ट्रॉनिक्स से मुतल्लिका, मोबाइल टेक्नोलॉजी का आना, 5G 6G, पता नहीं, इस तरह की कई टेक्नोलॉजीज़ आपको 2024 में मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें 2024 में आप देखेंगे। ख़ासकर सियासी हवाले से जो है वो भी एक बहुत हैरानकुन मंजरनामा पेश होगा। अच्छा, दुनिया के लिए ये साल कैसा होगा? पाकिस्तान का तो हो गया, अब दुनिया को हम थोड़ा सा मैं टैरो कार्ड की एनर्जी को यूज़ करूँगा, ठीक है, और फिर मैं इसको भी हम देखते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का तो मैंने इस्तेमाल किया है। हाँ। तो टैरो कार्ड से देखते हैं कि टैरो कार्ड क्या बताते हैं आलमी एनर्जी को, दुनिया की ताकत को क्या देखते हैं। तो आलमी तौर पे दुनिया के लिए 2024 कैसा रहेगा। तो देखते हैं जनाब, 2024 का साल 3 कार्ड की एनर्जी से देखते हैं 2024 का साल दुनिया के लिए कैसा रहेगा। 2024 दुनिया के लिए कैसा रहेगा। देखें, पहला कार्ड है द एम्परर। एम्परर कार्ड जो है बहुत बड़ी तब्दीलियां, अब जो भी तब्दीलियां करोगे, जो भी फैसले करोगे, आप उसमें अगर इंसाफ नहीं करोगे, ठीक है, मुल्कों को साथ नहीं लेकर जाओगे और बेइंसाफी करोगे, अपने ब्लॉक बनाओगे, तो दुनिया डिस्टर्ब होगी। बड़े बड़े फैसले नजर आते हैं 2024 में, मगर जो फैसले होंगे उससे अवाम खुश नहीं होंगे। आलमी सतह पर अवाम के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि सेकंड कार्ड की एनर्जी है डिसहार्ट, दिल का टूटना। जो अवाम चाहती है अपने जो है जिनके पास हुकुम अरबाबे इख्तियार से, वो उनको नहीं डिलीवर होगा, उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी, अपने अपने फैसले करने में लगे रहेंगे, अवाम का नहीं सोचेंगे, अवाम का ख्याल नहीं होगा, जिसकी वजह से दुनिया के ऊपर प्रेशर होगा, दबाव होगा, टेंशन होगी, महंगाई का जोर होगा, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर टैक्सेस लगेंगे, अवाम परेशान होगी, घबराए हुए होंगे, दुनिया को स्ट्रगल होगी, कोशिश होगी, टेंशन होगी, क्या होगा, कब होगा, किस तरह होगा। दुनिया के ऊपर खौफ, अवाम के ऊपर खौफ, प्रेशर, दबाव, खिंचाव, टेंशन, हालात की खराबी, बड़ी बड़ी रकमों का डूब जाना, कई लोगों को बड़े फ़ायदे मगर ज़्यादातर लोगों को नुकसान। सोच समझ के फ़ैसले करने चाहिए, सोच समझ के हालात को साथ लेकर जाना चाहिए। बड़े फैसलों की बजाय सोच समझ के सी एंड वेट करके फ़ैसले करने चाहिए। इन्वेस्टमेंट मुस्तकिल कहीं नहीं लगानी चाहिए, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके उसको निकालना चाहिए। ज़्यादा देर की इन्वेस्टमेंट पैसे का ज़िया, हालात की खराबी। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो माशी तौर पे ये साल पाकिस्तान के लिए कैसा होगा? तो देखते हैं 2024 का साल पाकिस्तान के लिए मुआशी तौर पर कैसा रहेगा। तो देखते हैं 2024 का साल पाकिस्तान के लिए मुआशी तौर पर कैसा रहेगा, क्या स्ट्रेटजी होगी। 2024 का साल पाकिस्तान के लिए मुआशी तौर पर कैसा नज़र आता है, कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है, टैरो कार्ड से देखते हैं 2024 पाकिस्तान के लिए मुआशी तौर पर
कैसा रहेगा। पाकिस्तान के लिए मुआशी तौर पे 2024 बड़े फैसले होंगे। जस्टिस का कार्ड ये है, आपके मुआहदे होंगे, आपके रोड्स बनेंगे, ठीक है, आपके हॉस्पिटल्स बनेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी, पैसा आएगा। दूसरा कार्ड ये है कि आपकी पाकिस्तान की, क्योंकि 8 का अदद मैंने आपको पहले भी कहा था कि 2024 8 का अदद और पाकिस्तान का भी 8 का अदद है। पाकिस्तान की मुआइशत स्ट्रॉन्ग होगी, तेल का रेट कम होगा, पेट्रोल का रेट कम होगा, अवाम को रिलीफ मिलेगा, अवाम के लिए नई जिद्दतें, नए फ़ायदे, महंगाई में कमी होगी, बाहर से पैसा आएगा। मीडिया के लिए बड़ा ज़बरदस्त है पाकिस्तान की तरक्की के चांसेस नज़र आएंगे, हालात में बेहतरी और स्ट्रॉन्ग पोजीशन नज़र आएगी। बड़ी खुशखबरी वाला साल आप बता रहे हैं माशी तौर पे। जो पाकिस्तान की आवाम जो महंगाई की चक्की में फंसी हुई है, उनके लिए तो फिर ये साल जो है ना वो अच्छा साबित होने जा रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि आलमी सतह पे इसके माशी के असरात होंगे, वो भी हम देख लें। हाँ जी, आलमी सतह पर 2024 की मुआशियत कैसी रहेगी उसको भी हम देख लेते हैं कि 2024 आलमी सतह पर मुआशियत कैसी नज़र आती है। 2024 आलमी सतह पर मुआशियत कैसी नज़र आती है। 2024 आलमी सतह पर मुआशियत कैसी नज़र आती है। तो जनाब, आलमी सतह पर मुआशियत के मामलात जो होंगे बेहतर होंगे। ख़ासकर जो चीज़ें आपको नज़र आएंगी, 2 जगह पे टेक्नोलॉजी का बहुत, जहाँ पे आलमी सतह पर पैसा आएगा। एक तो जो समुंदर है, समुंदर से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं, वहाँ पे एक नई पैसे का इजाफा, जहाज़ रानी जिस तरह होते बड़े बड़े जहाज़, इस तरह टेक्नोलॉजी। एक तो समुंदर और दूसरा फ़ज़ा। ये 2 टेक्नोलॉजी जो है, ये जो लोग यानी कि बड़े बड़े जहाज़ उड़ने वाले और पानी वाले, और मिसाइल टेक्नोलॉजी, प्लस ये कि शायद इस सिस्टम में काम हो कि जिस तरह टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है कि अमेरिका में गाड़ियाँ बन रही हैं और वो फ़ज़ा में उड़ें, और इस टेक्नोलॉजी में बड़ा पैसा आएगा। जहाज़ रानी की सनत, समुंदर की सनत और फ़िज़ा की सनत, इसमें मईशत में बड़ा पैसा आएगा और बड़े फ़ैसले होंगे। जो आलमी सतह में लोग चाहते हैं खुशियाँ, उन खुशियों की तरफ रुझान बढ़ेगा। मईशत की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अवाम खुशहाली की तरफ जाएंगे, खुशहाली का सफ़र शुरू होगा, सुकून आएगा, मईशत में सुकून आएगा। क्योंकि आपने 2023 में जंगें देखी हैं, 2023 जंगों का रहा है, लेकिन शायद 2024 जहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, लोग अल्लाह ताला से रहमत, बरकत, सुकून की तलाश में, रिज़्क़, दुआएं कबूल होंगी, अल्लाह राज़ी हों। अल्लाह, क्योंकि 8 का जो अदद है, मैं साथ साथ न्यूमरोलॉजी को भी साथ ले रहा हूँ, 8 का अदद दुआओं की कबूलियत का अदद भी है, अल्लाह से ताल्लुक़ का अदद भी है। लोगों का रुझान रूहानियत में बड़ा बढ़ जाएगा, थर्ड आई की तरफ बड़ा बढ़ जाएगा। लोग अल्लाह ताला से मांगने का हुनर, गुनाहों की माफ़ी, अल्लाह से मांगना और कुर्बे इलाही, उसकी तरफ फ़ौक़ियत देंगे। मजहबी रुझानात पैदा होंगे। मादियत से लेकर लोग रूहानियत का सफ़र तय करेंगे, रूहानियत से फ़ायदे उठाए जाएंगे। रूहानियत से आपकी मईशत, आपकी जो है मुल्की जो मामलात हैं, उसमें अल्लाह की मदद नज़र आती है।